Khan University. So I'm going to be giving, giving the introduction of Commander Tariq Aziz. So good morning, everyone. We're pleased to welcome Commander Tariq Aziz, a retired naval officer with extensive experience in management, human resources, and administration across leading government and private organizations, including their account Karachi. He holds a master's degree in war studies and an MS in project management, a passionate reader, speaker, and lifelong learner. He has inspired many through the talks at universities and knowledge forums like the Linkers and Readers Club. He is an experienced member of the Readers Club Online. He also served as president of Zenith Toastmasters Club. His love for learning, books, and meaningful dialogues continues to connect and uplift others. Please join me in welcoming Commander Tariq Aziz. Thank you. Thank you very much for a very, very nice word. I'm deeply honored to be here today at the Linkers. Linkers is the space where the minds, they don't just meet together, but rather they grow together. And I'm truly privileged to be speaking in front of very distinguished individuals who are having decade of experience, or it looked like to speak in front of such seasoned persons, ऐसा फील होता है जैसे सूरज को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ है. So I will try my best. Let's start our journey. At the very onset, I will show you the three individuals. These are the three individuals at now standing today. They are very popular. They have worked in their fields. But some part in their life, अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से में, they have been disliked. They have been disproved. And at that very moment, they stick to their truth. जिस चीज को ये सच समझते थे, they continue with that. We will discuss it out, and that is the theme of today's. The courage to be disliked, to be original. I welcome Dr. Tariq Siddiqui. He has been out for more than 30 years international. I welcome you, sir. Thank you. So I was continuing. Let's start with the first one. Muhammad Ali Clay. A person in 1967, अपनी career की peak पे, he was world heavyweight champion, gold medalist in Olympics, and a lot of cultural icons, people were after him. At that very moment, 1967, his country USA, it entered into the war with the Vietnam. और उस particular moment पे, he thought that his country is not going for a just war. It is an unjust purpose. At that very moment, he said, no, I will not join. He refused. He refused the cause of his country because he thought it is the right thing. And then, everything went against him because it was against the government policy, it was against the national cause. So he lost his title, it came national outrage, and within nights, from hero to a hated person, he entered into that category. At that very moment, he said, I would rather lose everything what I believe than winning by pretending. मैं अपने सच के साथ खड़ा रहूँगा बनिस्बत, और इसमें मैं हार जाऊँगा बनिस्बत में झूठ बोल के या प्रिटेंड करके जीत के. And then he stand up with his values and principles, and later on we saw
वही लोग जिन्होंने उनके ऊपर वोट किया था, they were against the bill. But he continued with his thought, with his view, with his version of it. He never required the approval of other people. यहाँ तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल आ रहा है जो आज के डिस्कशन का महवर होगा। मैं आपको लेके जाता हूँ 1967 में, and now you imagine into the shoes of Muhammad Ali Clay. We all are here, now we all become Muhammad Ali Clay. आप सोचें, आपका करियर है इंटरनेशनल करियर, your wealth, आपकी दौलत, your fame, it is all with you. और आपसे सिर्फ ये बोला जाता है कि आप ये सारों ले लो या आप सच बोलो जो कि पब्लिक फेम या जनरल कंसेंसस के खिलाफ है। हाउ मेनी ऑफ अस विल स्टैंड अप टू द ट्रुथ दे? कितने लोग हैं जो अपनी फेम, अपनी वेल्थ, अपने कैरियर को छोड़ेंगे और सिर्फ एक सच को बोलने के लिए खड़े होंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट और यही हमारे आज का टॉपिक है और हम इसको डायसेक्ट करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कर सकते हैं। मैं आपको और पीछे ले जाता हूँ। इट इज एंशिएंट एथेंस। सुकरात एक ऐसे फिलोसफर हैं जो कि गलियों में घूमते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, वो यंग लड़कों से मिलते हैं और उनको चैलेंजिंग क्वेश्चन भेजते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनकी माइंड को चैलेंज करते हैं, जो उनकी वैल्यूज़ को चैलेंज करते हैं, जो उस वक्त के लोग पावर में हैं उनको चैलेंज कर देता है। क्या होता है, उस वक्त के पावरफुल लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगती, उनको बुलाया जाता है, उनके ऊपर ट्रायल किया जाता है, एंड देन ही हैज बीन आस्क्ड ईदर यू सेलेक्ट योर ट्रुथ और चूज द डेथ, या आप ये सवाल पूछना बंद कर दें या ये जहर का प्याला पी लें। कितना सिंपल सा और आसान सा ऑप्शन है, सवाल पूछने बंद कर दें या फिर जहर का प्याला पी लें। एंड वी ऑल नो व्हाट वाज हिज चॉइस। ये तो बहुत आसान है सुनना, असल चीज़ है हम जब अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं, हमें मालूम है सच ये है, लेकिन हमें ये पता होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ शायद सामने वाले को ये सच अच्छा न लगे, तो क्या हम वो सच बोलते हैं? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। So this we will come to that conclusion, but normally we avoid the thing. हम कहते हैं कि चलो अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करें, एंड वी अवॉइड दैट पार्ट। सो दैट इज द करेज, दैट इज द थिंग, दैट इज द इनसाइट, दैट इज द ओरिजिनलिटी। ये दो तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी। अब हम अपने नेशनल लेवल पे आए। एक आदमी है जो बहुत सादे कपड़े पहनता है, 2 रूम्स के अपार्टमेंट में रहता है, अपनी एम्बुलेंस वैन खुद चलाता है, लोग उसका मजाक उड़ाते, टू सिंपल, बट ही स्टिक टू हिज, वो कंटिन्यूस वो काम कर रहा है जिसके लिए उसका ब्रेन उसको सिग्नल्स दे रहा है। इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी जो अपेरेंटली हमें नजर आता है। ही नेवर वॉन्टेड अ फेम, ही नेवर गो फॉर एनी मेडल्स, ही नेवर गो फॉर एनी प्राइजेस, बट एट द सेम टाइम उसको ऑफर आते हैं, पॉलिटिशियंस उसको ऑफर करते हैं, ज्वाइन अवर कैंपेन, वी नीड यू, से नो। रिलीजियस ग्रुप्स को कहते हैं कि जी आप हमारे साथ काम करें, से नो। व्हाटसोएवर हिज ट्रुथ वाज, ही स्टिक टू दैट। और उनको लालच दी गई, उनको डराया गया, घूस दी गई और उनको लाइफ थ्रेटनिंग दी, बट ही नेवर, ही स्टिक टू हिज वेरी सिंपल थिंग। हालांकि बस उनके पास ऑप्शन बहुत, वी ऑल नो दिस। So these three peoples, ये तीनों डिफरेंट एरा के डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन ये वो लोग हैं
जो इन्होंने सही समझा, इन्होंने उस चीज़ को कैरी किया और साथ लेके चले। और यही आज का हमारा टॉपिक है। वी ऑल आर अ सोशल एलिमेंट, ह्यूमंस, वी ऑल आर सोशल एलिमेंट। और बीइंग अ सोशल पर्सन, हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि पीपल शुड प्रेज मी, आई शुड हैव फैंस, मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं उनको मुझे पसंद आना चाहिए, आई शुड बी अ लाइकेबल। और इस फीलिंग के अंदर हम, और इस आदत के अंदर हम जब पढ़ते हैं, वी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, और एक टाइम ऐसा आता है कि वी लूज अवर सेल्फ, हम अपना भूल जाते हैं और हमारा एम जो है वो बजाय ओरिजिनलिटी के लाइकिंग पे चला जाए, प्रेस पे चला जाए, लोगों के अप्रूवल पे चला जाए। एंड दैट इज द वेरी मोमेंट व्हेन वी लूज आवर सेल्फ, आवर ऑथेंटिसिटी। इस टॉपिक और इस थीम को लेते हुए दो जापानीज फिलोसफर, इचिरो कामिशी और जो एक जापानीज फिलोसफर थे, और उनके साथ एक राइटर थे फुमितेके कोगा, इन दोनों ने ये कॉन्सेप्ट लिया और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बुक लिखी, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। और आज हम इस बुक को डिस्कस करेंगे। मज़े की बात, दे आर फ्रॉम द ईस्ट, हैविंग द ईस्टर्न विजडम, बट दे टुक लीड फ्रॉम द वेस्टर्न psychologists. These are the three psychologists. They are the top names in the modern psychology. We all know about the Sigmund Freud, then the Carl Jung, and the lesser known is Alfred Adler. And Alfred Adler has been taken for the psychology of this book. हम सबको पता है कि Sigmund Freud की psychology believe करती थी कि a man is slave of his experiences. Sigmund Freud ये कहते थे जो चीज़ हमें ड्राइव करती है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट ड्रामास और वो रिप्रेसिव ख्वाहिशात हैं जो हमने दबा दी। लेकिन आज की बुक जो बिलीव करती है और जिस साइकोलॉजिस्ट पे ये बेस्ड है, एल्फ्रेड एडलर, वो इन्हीं के शागिर्द भी थे, कुलीग भी थे, and he respectfully disagreed with him and came up with a different idea. The idea is we are not determined by our past. Whatsoever happened with me, it is not determined me. It will not guide me. My future is detached from my past. And we are driven by the goals today. Instead, जो goal आज मैं set करता हूँ, मैं उससे drive हूँ. This is the most difficult and very exclusive topic which we will be discussing. और एल्फ्रेड एडलर की फिलॉसफी तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। The first one is our drama, our past is not our goal, what we choose to do. And most of the problems which the Sigmund Freud said कि हमारी बचपन की रिप्रेसिव ख्वाहिशात थी जिसकी वजह से हमारा रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं। He said no, it is not the childhood, it is the present, how you deal with the people, how your connection with the people. And the third part is, which is the most enjoyable part, that happiness doesn't come from praise and power, rather it comes from contribution to the society. इन themes को लेते हुए आज का सेशन हमने 6 themes के ऊपर किया है। ये 6 ट्रांसफॉर्मेटिव किस्म की themes हैं जो हम one by one डिस्कस करेंगे और एंजॉय करेंगे। These themes are very bold, they are uncomfortable, but let me make it very clear. It really doesn't mean that you will become a rude person. Rather, it will make you authentic personality, original you. इन तीन से कहीं से भी हमें ये फील नहीं होगा कि हमें बदतमीज़ बनना चाहिए या हमें अपनी राय दूसरों के ऊपर इन्फोर्स करनी चाहिए। रादर ये आपको ये बताएगी कि वो लाइन कहाँ पे है जहाँ पे आपकी अपनी राय और दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड दीज आर द आइडियाज दैट विल मेक यू फ्री ऑफ योर दोज कैबिनेट्स। द फर्स्ट पार्ट,
ट्रॉमा डजंट एग्जिस्ट। हमारी लाइफ में मुख्तलिफ सदमात, तकलीफ़ें और मुश्किलात आती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी बंदे से मिलते हैं तो ही टॉक्स अबाउट हिज डिफ़िकल्ट पार्ट, कि मैं जब बचपन में था तो मेरे वालिद की डेथ हो गई, मैं वहाँ जा रहा तो मेरी पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, एंड देन he drives all his present and future depend on that trauma. Today's the first theme says we are not defined of trauma. हम सबको पता है कि हम सबकी कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं। Every life has a story and every story has some difficult and hard part. और उस difficult और hard part के कुछ जख्म होते हैं जिसके निशान हम थ्रू आउट आवर लाइफ कैरी करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आज की जो थीम है वो ये कहती है कि कोई सदमा, कोई डिप्रेसिव थॉट या कोई मुश्किल मरहला जो आपकी ज़िंदगी में गुजर गया, तो बेसिकली एक आज की प्रेजेंट में वो हकीकत नहीं है, रादर वो अकीदा है, वो एक ख्याल है जो हमने अपने ब्रेन में रखा हुआ है और अपना प्रेजेंट जो है हम उससे ड्राइव कर रहे होते हैं या अपने फ्यूचर को उससे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम कि हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं। सो लेट्स मेक इट सो कम बैक। ये आज की जो फर्स्ट थीम है ये कहती है कि योर पास्ट डजंट डिटरमिन, आपका जो माजी है वो आपके प्रेजेंट या आपके फ्यूचर को डिटरमिन नहीं कर सकता। And you are not your trauma or your scar which you are carrying on. Pain, it happens, of course, this is the reality of life, हम सबको मुश्किलात आती हैं, but it is not for us to take it into our present या अपने future में लेके चलें। हमने सबसे पहले ईदी साहब को डिस्कस किया, ये बंद डिस्कस किया था। ईदी साहब is not as simple as we know him today. At the age of 12 years, his mother, she got bedridden due to some disease. और जब जिस तरह हम सबको मालूम है कि कोई बंदा bedridden होता है, he start complicating his issues. और during that complication वो psychiatric की patient हो गई, and at the age of 12, ईदी साहब, he was the only available people in his house, so he started doing all the business of the house plus taking care of his mother for next 9 years. 9 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया और अपनी मदर की खिदमत की, और 9 साल के बाद जब तकरीबन वो 20 और 21 साल के थे, उनकी मदर की डेथ। Now the theme says he has all the reason for his whole life to present an excuse कि जी मेरा जो पढ़ने का टाइम था, मेरा जो सीखने का टाइम था, मेरी उस वक्त वालदा बीमार थी और मैंने वो वक्त उनको दिया। अगर वो ये कहते it was just right and whole society would have believed him and he would have continued, लेकिन बात ये नहीं, उन्होंने वो सदमा, वो मुश्किल मरहला, वो तकलीफ, उससे कुछ और मीनिंग निकाली। वो मीनिंग ये थी कि मुझे उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो बीमारी की उस हालत में है कि वो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते। तो यू सी कि जो ट्रॉमा या जो सदमा या जो परेशानी हमें हमारी लाइफ में मिलती है वो एक हकीकत है, लेकिन उससे जो मीनिंग निकालते हैं वो हमारे हाथ, एंड दैट इज द फ्रीडम। वी ऑल नो दैट जो तकलीफ आई उसको तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज द जर्नी ऑफ लाइफ जिसके दरमियान में ये चीज़ें आती हैं। लेकिन उससे मीनिंग हम कैसे लें? वी कैन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो हम सोचते हैं। हम सबको मालूम है डेथ इज द अल्टीमेट, और किसी फैमिली में अगर हेड ऑफ द फैमिली मेल और फीमेल की जब डेथ हो जाती है एंड यू विजिट दैट फैमिली आफ्टर मे बी 6 months, आपको उस घर में 2 किस्म की फीलिंग नजर आए।
फर्स्ट फीलिंग, 6 महीने के बाद आप ऐसे घर में जा रहे हैं जिसमें हेड ऑफ फैमिली की डेथ हो गई है, यू विल एंटर इनटू द हाउस एंड यू फील सैडनेस, और आपको लगेगा यार वो बंदा चला गया, मज़ा नहीं है इसका, वाकई वो बंदा बहुत अहम था और उसकी वजह से अब इस फैमिली में वो बात नहीं रही जो उसकी वजह से। दिस इज वन इंटरेस्टिंगली इसका अपोजिट साइड आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, जिस फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हो जाती है विद इन 6 मंथ वहाँ पे शादी भी होगी, उसके बेटे की शादी हो जाएगी या उसकी बेटी की शादी हो जाएगी या उसका बेटा जो उसका कारोबार है वो टेक ओवर कर लेता है, एंड यू विल विजिट हिम आफ्टर 6 मंथ, यू विल फाइंड डिफरेंट। उसकी बेटे की शादी हो गई है, घर में बहू आ गई है या उसके बेटे ने कारोबार टेक ओवर कर लिया है और चीज़ें चलना शुरू हो गई, एंड सम टाइम यू फील इवन बेटर। ये दोनों थीम है जो हमारी सोसाइटी में चल रही होती है, हमने ये दोनों थीम्स ऑब्जर्व की, हम देखते हैं। इस केस में जो आज का हमारा थीम, द फर्स्ट केस, जब वो हेड ऑफ द फैमिली चाहे मेल और फीमेल हो, उनकी जब डेथ होती है, द होल हाउस it takes meaning from that trauma and that carry that trauma to their present purpose and future. लेकिन दूसरे केस में वही फैमिली मेंबर्स वो मीनिंग डिफरेंट लेते हैं एंड दे प्रॉस्पर, एंड वी ऑल ऑब्जर्व दिस इन आवर सोसाइटी। So that is the thing, that we are fully in control of our future. Our choice, our life is to be steered by us, and the experiences are defined by the meaning we give to that experience. हमारी लाइफ में हमें जो भी ट्रॉमा मिलता है, जो सदमा मिलता है, जो ख्वाहिश पूरी नहीं होती, उसको जो मीनिंग है वो हम लोग देते हैं, एंड दैट इज द थीम नंबर 1। लुइस ब्रेल, वर्ड ब्रेल ये वो सिस्टम है जो ब्लाइंड अंधों के लिए रीडिंग्स मैकेनिज्म। आज से तकरीबन 200 साल पहले लुइस ब्रेल पैदा हुए, और जब वो बहुत छोटे थे उनके फादर उस वक्त चमड़े का कारोबार करते थे, और चमड़े के कारोबार में कुछ उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते थे। बच्चे थे, ही स्टार्ट प्लेइंग विद दोज इंस्ट्रूमेंट जो नीडल्स से थे, एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग प्लेइंग वो नीडल उनकी आँख में लग गई और इन्फेक्शन। अब 8 years ब्रेल, उनकी आँख में वो इन्फेक्शन हुआ, और उस ज़माने में 200 साल पहले देयर वाज नो मेडिकल साइंस ऑफ दैट लेवल व्हिच कुड हेल्प। सो वो इन्फेक्शन एक आँख से दूसरी आँख में आया, एंड अ टाइम केम कि उनकी 9 साल की उम्र में दोनों आँखें ज़ाया हुई। नाउ दिस फैक्ट इज डिफरेंट इन दोज 200 years before। उस वक्त की सोसाइटी किसी अंधे बंदे का होना उसको डिवाइन पनिशमेंट तस्वुर करती है। He has been punished by the God and his eyesight has been taken, और सोसाइटी में उसको बहुत बुरा माना है। The only option his father has to send him to the blind school, जहाँ वो गए और वहाँ पे उनको एक ऐसे टीचर मिले जिन्होंने उनको कोशिश की सिखाने की, उभरे हुए डॉट से किताब पढ़ना सीखा, and he took that. Now Louis Brain, he has 2 options. He has all the way to spend his life like a beggar. वो एक अंधा फकीर भी बन सकते, बट उन्होंने अपने सदमे को, अपनी तकलीफ को एक दूसरी माना, and he took it in a different way, and he start working on those dots, और उस डॉट्स की मदद से उन्होंने एक नया सिस्टम ऐसा इजाद किया कि 20 साल की उम्र में उन्होंने एक डॉट से बुक लिखी, एंड फाइनली ही मेड अ सिस्टम जिसमें जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उन लोगों के लिए उन्होंने किताबें लिखी। सो इसी छोटी सी स्टोरी से मैं अंदाज़ा होता है कि जो ट्रामा या जो मुश्किल मरहला में आता है उससे मीनिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी वो हमारा काम है। दैट इज द पार्ट विच दिस थिंग इज। उसको तकलीफ तो आई, लेकिन उस तकलीफ ने उनका
रास्ता नहीं रोका, राधा उसने एक दूसरा रास्ता बना लिया। So this is the way how we give meaning to our pains. Basically हम अपने माजी के गुलाम नहीं हैं, माजी हमारे कंट्रोल में नहीं, बल्कि हम उस माजी से मीनिंग लेके अपने हाल के मामात, हम अपना हाल और फ्यूचर उस मीनिंग से पॉजिटिव भी लेके जा सकते हैं और नेगेटिव भी लेके जा सकते हैं। दूर क्यों जाते हैं? हमारी अपनी एग्जाम्पल है मुनीबा मिजारी। शी वॉज अ लेडी हैविंग मॉडलिंग करियर, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल लेडी एंड शी वॉज मैरिड। सडनली शी गॉट एन एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट में उनकी स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब होती एंड शी बिकम्स अ व्हीलचेयर। All her career, all marriage part, all the modeling, all the fame, all lost. Sudden. Now again, she had two choices. Either to spend a miserable life on a wheelchair or to take up another path, which she took. और उन्होंने कहा, I may be on wheels, but my dreams can fly. वो अगर अपने माजी को बहाना बना दी, उसको कोई रीज़न दे दी, तो दुनिया इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े लीडर, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से महरूम हो जाए। नाउ शी इज द US एम्बेसडर। सो दिस इज हाउ शी गेव एन मीनिंग टू हर ट्रॉमा। यस ऑफ कोर्स, हमें रियलिटी नहीं भूलना चाहिए। तकलीफ रियल है, जख्म आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, हकीकत है, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी का रुख उस जख्म की बेस पे नहीं होना चाहिए, उससे डिफरेंट टर्न होना चाहिए और उसके बाद वाला पार्ट वो टोटली डिफरेंट है। पीपल फैब्रिकेट ट्रॉमा टू जस्टिफाई देयर पर्सनल बिहेवियर्स। दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट कि हम, अगर मैं सुस्त हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ और मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो मैं अपनी उस ख्वाहिश को अपने ट्रॉमा के साथ अटैच कर देता हूँ और कहता हूँ यार मैं तो घर में सबसे बड़ा था, सारे काम मुझे मिल रहे होते थे, तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता। एक और आवाज़ भी आती है, मैं घर में सबसे छोटा था तो मुझे कोई वैल्यू ही नहीं दी गई, मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं, मैं तो बहुत लाडला था। और एक और, मैं तो दरमियान में था, बड़े को ज़्यादा तवज्जो दी गई, छोटे को प्यार ज़्यादा दिया गया, मुझे कुछ भी नहीं किया गया। तो यू सी, यू हैव ऑल द रीजंस ऑफ योर ट्रामा, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट को फैब्रिकेट करते हैं और उस रीज़न को उसके साथ अटैच करते हैं, जबकि असल में माजी जो है इट्स जस्ट अ रिकॉर्ड, जस्ट अ हिस्ट्री, एंड हाउ यू गिव इट अ मीनिंग। हमने ये भी सुना होगा कि मेरे अबू बहुत सख्त है, इस वजह से मैं पढ़ाई से भाग गया, और ये भी सुना है कि मेरे अबू बहुत सख्त है, इस वजह से मैं पढ़ाई में आगे चला गया। तो दीज आर दी हाउ यू गिव मीनिंग टू योर डिफिकल्ट पास्ट। सो योर प्रेजेंट चॉइस क्या होनी चाहिए? वी शुड फोकस ऑन दी एम्पावरमेंट। इसमें हम विक्टिम को ब्लेम नहीं कर रहे। यस, उसके साथ बुरा हादसा हुआ है, उसको तकलीफ आई है, बट पॉइंट इज कि उस तकलीफ से उसको एम्पावर हो गए, उसने आगे बढ़ने की बात सोचनी है, ना कि उस तकलीफ में ही रह जाना। एंड दिस इज हाउ यू लिव टुडे। इट इज़ योर चॉइस कि आप आज का दिन कैसे गुजारते हैं, और इसका पास से कोई ताल्लुक नहीं। सो यू आर योर प्रेजेंट चॉइस। आपकी पहचान वो नहीं है जो आपके साथ हुआ है या हो चुका है, बल्कि वो है जो आपने उसके बाद किया है, आप अपनी लाइफ को कैसे लेके आगे बढ़े। दिस वॉज द थीम 1। द थीम 2, दिस इज फर्दर स्ट्रॉन्गर। नाउ दिस थीम इज सेइंग, जिस तरह सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि हमारी जितने भी कैरेक्टर एसोसिएशन हैं वो हमारे बचपन से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे बचपन में जो हमारे साथ ज़्यादती हुई या हमारी ख्वाहिशात को सप्रेस किया गया, वो बाहर आ जाती हैं जब हम बड़े होते हैं और हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। बट दिस कॉन्सेप्ट इज contrary to that. It doesn't think, it says it is not connected with your childhood.
आपके बचपन के साथ आपकी प्रॉब्लम्स कनेक्टेड नहीं, बल्कि आपकी प्रॉब्लम आपके प्रेजेंट सोशल रिलेशंस के साथ कनेक्टेड है। योर प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल,